Okay, starting with the very first problem of this topic, which is shown to you here, example 12-25. We have a train which is moving towards the right with a velocity of 60 miles per hour. So this train T is moving towards the right with a speed of 60 miles per hour. Then you have a car, which is this car A. It is traveling along this road at a speed of 45 miles per hour, and this road is at an angle of 45 degrees with respect to the axis of the train. So you are asked to determine the magnitude and direction of the relative velocity of train with respect to automobile. So you need to find out the relative velocity of train with respect to automobile. The velocity of relative velocity VTA आपने जो है वो determine करनी है. So by formula अगर हम बात करें, what does this VTA would be equal to? Anyone volunteer? जो अभी हमने discussion की थी, VTA किसके बराबर होगा? It should be equal to VT minus VA. ठीक है? Basically equation क्या थी? VT should be equal to VA plus VTA. तो VTA would be equal to VT minus VA. अब अगर हम इन दोनों देखिए ये वेक्टर इक्वेशन, इट इज अ वेक्टर इक्वेशन, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इस VT और VA को वेक्टर फॉर्म में लिखें. ये ना हम 60 माइनस 45 करके कहें कि 15 माइल्स पर आवर जो है वो VT होगा, नहीं, ऐसा नहीं है. इट इज अ वेक्टर इक्वेशन, सो वी नीड टू राइट ऑल दीज थ्री टर्म्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर. अब वो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए चॉइस आपकी हो सकती है कि आप उसको XYZ कोऑर्डिनेट्स में लिखें तीनों वेक्टर्स को, आप उसको चाहें तो NTB में लिख दें, आप उसको चाहें तो R थीटा Z में लिख दें, लेकिन all these three vectors should be represented in any one coordinate system. ये ना हो एक को आप NT में लिख रहे हो, एक को आप R थीटा में लिख रहे हो और एक को आप XY में लिख रहे हो. ये तमाम वेक्टर्स किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने डिफाइन करने. सो स्टार्टिंग विद VT, हमें जो ट्रेन की वेलोसिटी गिवन है, it is given to us as 60 miles per hour, and since we are using a conventional XY coordinate system in which the positive right axis is the positive X axis, so what should be this vector VT would be? So this vector VT would be 60I miles per hour. यहाँ तक क्लियर है एक को VT वेक्टर? Yes sir. जी आवाज आ रही है मेरी? जी सर. Okay. Now what about this vector VA? What should be this vector VA? Anyone volunteer? Sir, 45 cos 45 I or 45 sin 45. It should be, क्योंकि आप देख लें ये वाला इसका डायरेक्शन ये है, so it should have positive x component, positive y component. Angle आपको given है which is 45 degrees. So this vector would become 45 cos of 45i plus 45 sin of 45j. So this is going to be vector VA. Values हम इसकी 45 cos 45 और 45 sin 45 निकाल सकते हैं. So overall this VTA vector would be VT vector which is 60i minus VA which is 45 cos 45i plus 45 sin 45j. So coming to the overall solution, जिस तरह अभी बात हुई, VT हमारे पास 60i था, VA जो है it would be 45 cos 45i plus 45 sin 45j. It would be 31.82i plus 31.82j miles per hour. So as per the equation VT equal to VA plus VTA, ये आपने VT की वैल्यू लिख ली, ये आपने VA की वैल्यू लिख ली. So ultimately VTA is going to be VT minus VA. So overall this relative velocity of train with respect to automobile would be 28.12i minus 31.12j. अब देखें ट्रेन तो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही थी, अगर आप एक फिक्स्ड ओरिजिन से इसको मेजर करते तो आपको ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही नजर आ रहा होता टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. बट सिंस यू हैव कंसीडर्ड योरसेल्फ टू बी स्टैंडिंग ऑन दिस पार्टिकल A, तो आपको VT जो है इसके मोशन के भी दो कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, उसमें I भी आ रहा है और उसमें J कंपोनेंट भी आ रहा है. सो दिस इज बेसिकली द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑटोमोबाइल. जब आपने अपने आप को एज अ ट्रांसलेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पे यहाँ VA के ऊपर जो है वो प्लेस कर लिए, तो आपको ट्रेन की वेलोसिटी जो है उसके दोनों कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes sir. सो वंस यू हैव फाउंड दिस वेक्टर, देन सिंपली इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो आप निकाल सकते हैं. जब किसी भी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में आपको कोई चीज मिल जाए, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो आप निकालते हैं, उसके कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट कर लें, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा और टेंजेंट वाले फॉर्मूले से आपको उसका डायरेक्शन मिल जाएगा. डायरेक्शन की अगर हम बात करें, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन से कोऑर्डिनेट में ये लाई करेगा?
सर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट तो बेसिकली जो आप एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं वो एक तरह से ये वाला एंगल है जो कि 10 के तरीके से आपने जो है वो फाइंड किया है। ठीक है, कोई Yes, sir. क्वेश्चन जो आप इस आसान सी एग्जांपल के हवाले से पूछना चाहें?